Hello, welcome back to my accountancy class, the Master's World. The topic of today's class is accounting standard. Accounting standards. You know, the students, without accounting standard, an accountant cannot be a chartered accountant. Why we are using these words? Because when we are talking about a chartered accountant, the chartered accountants in India are can say generated by or created by the Institute of Chartered Accountants of India. The Institute, ICAI, Institute of Chartered Accountants of India. This institute provides the education in the commerce, especially accountancy and auditing. This institute create the CA, Chartered Accountants, and this institute tells the how accounts should be prepared and maintained. This institute issues some guidelines, rules, regulations, instructions, and these all the guidelines, rules, regulations, instructions, and the norms, you can say norms, the laws are taught to the students. How the accounting transaction, how, or you can say how any accounting term is given the solution or given the accounting treatment is taught in the ICAI to the students. Or these all the norms, rules, regulations, guidelines, instructions, or you can say principles issued by the Institute of Chartered Accountants of India are called accounting standards. So that all over the India, the accountancy, or can say accounts, books of accounts, may have a uniformity. They can be prepared, maintained in the uniform manner. Uniformity means एक जैसे हों. And it is to be simple to check or to audit the accounts of any business enterprise. किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के अकाउंट्स को चेक करना थोड़ा सा आसान हो जाए यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एक जैसा लाने के लिए. And you know, some accounting standards are also prepared from the point of view of income tax laws, means income tax act. That's why we create a match, means we can say that ICAI, Institute of Chartered Accountants, create a match between its accounting standards and the provisions of the laws. जो ICAI है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर करता है जिसके बेस पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाते हैं. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं कि अकाउंट्स कैसे बनने हैं, कैसे मेंटेन करने हैं, किसी बिजनेस टर्म को कैसे ट्रीटमेंट करना है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दिए जाते हैं लॉज से, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इन सबके एक्ट्स के प्रोविजंस को भी यहां कंसीडर किया जाता है. कुछ स्टैंडर्ड्स हमारे इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इशू करता है, लेकिन वो 99.99% सिमिलर होते हैं आपके आईसीआई के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से. सिंपली हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं पढ़ लिया है. मीनिंग What are the accounting standards? These are the set of guidelines. ये set of guidelines है. That is the generally accepted accounting principles, GAAPS. In the first class of this chapter, we have learned this. What is generally accepted accounting principles? ऐसी practices, methods, principles जो generally uniformly में follow किए जा रहे हैं, जिन्हें generally accountants follow करते हैं. और ये कौन issue कर रहा है generally आपको? ICAI, Institute of Chartered Accountants of India. हम बात करते हैं issued by the accounting body of the country. किसी भी कंट्री की अपनी एक अकाउंटिंग बॉडी होती है. अकाउंटिंग बॉडी मींस अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशन होता है. जैसे हमारे यहाँ क्या है ICAI. तो इंडिया में जब आप बात करते हो एग्जाम्पल के लिए CA, Chartered Accountants. I for Institute. I means India.
सब कंट्री के अपने अपने अकाउंटिंग बॉडी होती है। उस कंट्री में जो अकाउंटिंग बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है, वो उस कंट्री के लिए ही कुछ स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करती है, तो कहलाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडिया में कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं? जो आईसीएआई इशू करती है, मींस वो गाइडलाइंस, सेट ऑफ गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस, प्रिंसिपल्स दैट आर जनरली एक्सेप्टेड, और यू कैन से आर टू बी एक्सेप्टेड, जो एक्सेप्ट किए जाने हैं, और इस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाना होता है, दैट इज कंपल्सरी। वो रूल बन जाते हैं कि अब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही मेंटेन करनी है। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, एग्जांपल के लिए जैसे AS3, वो अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है, मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 आपको बताएगा कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है, कैश फ्लो, कैश का आना जाना, तो स्टेटमेंट है, फॉर्मेट है, और वो आप 12th में पढ़ेंगे। फिक्स असेट्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है, कैसे उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में दिखाया जाता है, कैसे उसमें डेप्रिसिएशन, तो फिक्स असेट से रिलेटेड आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 10। और बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, यदि आप कहते हैं सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने पढ़ लिए, देन यू विल बिकम क्वाइट सीए, नॉट कंप्लीट सीए, क्वाइट सीए, बिकॉज़ a number of subjects are there, that's all. Okay, accounting standards. This is the nature of the accounting standards. You can see the characteristics, guidelines. These are the guidelines to the accountants of any business enterprise, the how the accounts should be maintained. Next, uniformity. When we are talking about the uniformity, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसलिए मेंटेन की जाते हैं ताकि सब में यूनिफॉर्मिटी रहे, यूनिफॉर्म, एक जैसे रहे, कि सभी के अकाउंट्स एक जैसे हैं, तो उसको चेक करने में आसानी आती है। ठीक है, यदि हम ऐसा करते हैं सारे टीचर्स एक ही जैसा मेथड, एक ही फॉलो चीजें पढ़ाना शुरू कर दें, तो आपको भी लगेगा हाँ यार उसने भी यही पढ़ा है, मुझे भी समझने में आसानी रहती है, तो यह काम करने के तरीके आसान एक से हो जाए, तो चेकिंग में आसानी रहती है। चेकिंग में कि आपको एक ही जैसा काम करना है, सभी को एक जैसा काम करना है, और आपसे कहा चेक कर लो, तो आप इजीली चेक कर सकते हैं बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ऑडिट की जाती है। नेक्स्ट, लॉज फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंगली टू लॉज। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, मींस टू से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में चेंजेस ला सकते हैं कि पहले कुछ ट्रीटमेंट होता था किसी अकाउंटिंग टर्म का या ट्रांजैक्शन का, अब उसी टर्म या ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट दूसरा होगा। क्यों? क्योंकि लॉज चेंज होती रहती हैं, इनकम टैक्स के रूल्स चेंज होते रहते हैं, प्रोविजन चेंज होते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जीएसटी आपने सबने सुना होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। रेस्टोरेंट में आप खाना भी खाते होंगे, उसमें दिया होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन पहले कभी आपने यदि किसी रेस्टोरेंट में गए हो, वहां पर आपने रिफ्रेशमेंट लिया हो, तो नीचे होता था सर्विस टैक्स, और कहीं जाते होंगे पहले आप एंटरटेनमेंट वगैरह में, तो एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, वैल्यू एडेड टैक्स लिखा होता था, वीएटी, वैट लगता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, उन सारी चीजों को हटा दिया, और जब इन्होंने हटाया तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी चेंज होगा, क्योंकि बिजनेसमैन को वो चीजें पे नहीं करनी, अब वो कुछ और पे करेगा, तो उन चीजों का ट्रीटमेंट अकाउंट से हटाना होगा। मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे, नया क्या आया उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू एडजस्ट द न्यू थिंग्स अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द लॉज। लॉज चेंज होती रहती हैं, इनकम टैक्स एक्ट मैंने बताया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बताया, आपको कंपनीज एक्ट बताया, उन चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, और ये चेंजेस कौन करता है? आईसीएआई। तो लॉज में क्योंकि चेंजेस आते रहते हैं, जैसे अब क्या आया चेंजेस में, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो लॉज के अकॉर्डिंग ये फ्लेक्सिबल होते हैं, आपके चेंज होते रहते हैं, क्योंकि लॉज चेंज होती रहती हैं। नेक्स्ट, मैंडेटरी। मैंडेटरी मींस कंपल्सरी। जब आप लॉज की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, कंपनी लॉज की बात कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब आप इतनी सारी बात कर रहे हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दीस लॉज, व्हाट आर द लॉज? Laws are those statements, guidelines, instructions which you have to follow strictly. Laws वो चीजें होती हैं, guidelines, instructions होती हैं, या statements होते हैं गवर्नमेंट के, या कहीं भी किसी भी तरह से, जो फॉलो करने ही होते हैं। तो मैंडेटरी, इसी लॉज की वजह से जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो मैंडेटरी हो जाते हैं।
एक तो आईसीआई ने कह दिया ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यही फॉलो होना है अकाउंटिंग में। आप इसी तरीके से किसी अकाउंटिंग टर्म का, ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट इसी तरीके से करेंगे, कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। सेकंड, लॉज भी उसमें आ गई। अब जीएसटी का ट्रीटमेंट क्या करना है, कैसे करना है, कितने परसेंट पर लगानी है, कितने परसेंट पर लगानी है, वो सब लॉज में है। अब आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते और वो आपको ट्रीटमेंट सेम करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। you have to follow the same procedure, treatment of GST etc. that is called mandatory. कंपल्सन हो गया कि यही ट्रीटमेंट करना है, मैंडेटरी मींस कंपल्सन, कंपल्सरी। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इससे थोड़ा सा ये अलग है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चेंज भी हो सकते हैं, रिवाइज भी हो सकते हैं। यदि आईसीआई को लगता है कि किसी अकाउंटिंग टर्म का ट्रीटमेंट बेटर हो सकता है, कन्वीनियंस हो सकता है, यदि उसमें पहले कोई कॉम्प्लेक्सिटी थी, उस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सकता है, कॉस्ट को कम किया जा सकता है, अकाउंटिंग कॉस्ट को, तो आप पुराने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर सकते हैं, नए मेथड्स में फॉलो कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं आप उसमें। तो ये कहलाया फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबिलिटी अलग थी, ये लॉस के अकॉर्डिंग थी, लॉस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, ये कंपलसरी फॉलो करना, मैंडेटरी। और ये फ्लेक्सिबिलिटी है आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। After that we are checking about the what are the utilities of the standards. Utility means uses क्या है अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड की। ये जो आपने पूरा मीनिंग समझा है, नेचर समझी है, उसी में आप यूटिलिटीज अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स के समझ सकते हैं। यूटिलिटीज मींस यूजेस, प्रोवाइड द नॉर्म्स। नॉर्म्स मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस वी टॉक अबाउट हियर। नॉर्म्स, नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, प्रोविजंस होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, लॉज को फॉलो करवाते हैं, और वो लॉज अलग अलग होती हैं। बेटा लॉ की बात नहीं, हम लॉज की बात कर सकते हैं। मींस इन डिफरेंट फील्ड्स a number of provisions and rules are there, that's why we call here laws. तो laws को, norms को प्रोवाइड कराते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। रूल्स के अकॉर्डिंग आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है, अपने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, कुछ स्टेटमेंट फॉलो करने पड़ते हैं। यूनिफॉर्मिटी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही जब सब अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अकाउंट्स बना रहे हैं, ऑडिटिंग मींस अकाउंटिंग चेक कर रहे हैं, तो एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी आ जाते हैं। यूनिफॉर्म मींस सिमिलर, सिमिलर हो जाते हैं। सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमने बताया था, हमारे बैंकर्स हो सकते हैं, मनी लेंडर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स कोई भी हो सकता है, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आपके अकाउंट से इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी या फाइनेंशियल पोजीशन। कोई भी चीज ट्रस्टवर्दी जब होगी जब वहां पर कहीं ना कहीं लॉस आ रही होंगी, लॉस का प्रेशर आ रहा होगा, कॉमन चीजें चल रही होंगी। तो आप क्या करते हैं कि यूनिफॉर्मिटी होती है, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं आप, कि जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होते हैं वो जब अकाउंट्स चेक करते हैं कि रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपने मेंटेन किया है, तो उनका थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाता है इस पर। फॉर एग्जाम्पल, व्हाटएवर आई एम टीचिंग इज गुड, बट मैं इसके बेस पर पढ़ा रहा हूं, क्या वो बेस क्या है कि लॉज हैं, कोई बुक है, टेक्स्ट बुक है, वो जो मेरा बेस है ना पढ़ाने का, तो आप कहते हैं नहीं ये ट्रस्टवर्दी है, आप उसको सुनेंगे, आपको लगेगा ठीक है ये रिलायबल है, रिलायबल मींस ट्रस्टवर्दी, और आप कॉन्फिडेंस करेंगे। मींस टू से आई एम रिपीटिंग अगेन, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और मेरे पढ़ाने के पीछे कुछ बेस है, इसे बोलने के लिए पीछे कुछ बेस है, चाहे वो थ्योरी हो या किसी के प्रिंसिपल्स हो, तो आप कहते हैं नहीं यार सही है, कॉन्फिडेंस है, आपका ट्रस्ट हो गया कि ठीक है इसके पीछे थ्योरी के पीछे कुछ बेस है जो बताया जा रहा है। ऐसे ही एक अकाउंटेंट अकाउंटिंग कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, तो वहां भी उसके पीछे कुछ बेस होगा कि वो ये नहीं अपनी तरफ से कुछ भी लिख दिया, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाएगा, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करेगा। तब हम कह सकते हैं कि नहीं यार अकाउंट्स उसकी ट्रू एंड फेयर वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रू एंड फेयर वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का उस पर ट्रस्ट बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है कि हाँ अकाउंट्स कहीं ना कहीं सही है। My dear students, it was all about the accounting standard. I hope that this video was meaningful for you. Give a thumbs up to like the video and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.